few hours. So Nokia E-band, O&M related, whatever is possible, they will cover. And whatever queries you have, because you must have already seen the equipment is already getting installed, or you handed over in some circles to your people for management. So get your all queries answered. I will record the session. So in case for future reference you want, you will also have the recording. And the further training for your FMEs, you will have to conduct. So also see in that perspective. Okay. Okay. Over to you, Gaurav. Okay, can you start the recording? Or Yeah, I will do. I will do it. you share my screen? Yeah, it is visible. Okay. Hi, good morning, everyone. My name is Gaurav Agarwal, and I'm working as a care technical manager in Nokia from past 16 years for Wavens product. And the agenda of today's training is to deliver the Wavens introduction and the O&M part, how to troubleshoot the issue, and what are the products deployed in the Bharti network. Right? Let's start. This is the Bharti bomb we are using in the products we are using in the Bharti network. UBT MX high. M is the E-band radio. UBT is ultra broadband transceivers is our audio name, right? UBT MX high and one is low and the other deployed is name. Means this audio is latched with the name. How it's latched with the name, how it's worked, we will see in the next further slides. Okay. And the electric LSFP, optical SFP, and the antenna, and the other is the optics part. Right? How we will see which optics we can use for which SFP. Okay. This is our audio UBT-MX high, UBT-MX low, and the maximum TX power for UBT-MX is 21 dBm. Sorry. This is our UBT-MX, right? In this, there are 5 ports are there. Means one is first one, this one. This one is the power port and 4 are the optical port. Means first is the electrical port for the login. Second is the SFP. Third is the coupling and fourth is the Nokia property port for the XPIC. But we can use only these all ports if we are using this audio in 1+0 configuration. But in Bharti, we are using this UBT not as a standalone. We are using with the NIM. So we can't use all these 4 ports. How many ports we can use? We can see in our next further slide. But we can use this power port only. Right? Uh, these are the ports, and the frequency is 80 gigahertz, and we can take up to 20 GB in the XPIC and in the 2 GB channel spacing, and the channel spacing is from the 62.5 to 2 gigahertz. Right? And we can, our modulation is BPSK to 5121. And this is DC, as I told you, this is the DC port, electrical, optical, this is for the coupling port, and this is the XPIC port. Right? This is the grounding port, this is the antenna BNC connector for checking the RSL through multimeter.
right? And this is the name. This name is their network interface module. This is the switch card, and we can latch with the audio, means audio and the name connected together, and the combined unit looks like this. Okay. After that, there are total 8 ports are there. 1, 2, 3, 4 for the audio, 5, 6, 7, 8. Total 8 ports are there. But when we connected NIM with the audio, we can use only these 4 ports, 5, 6, 7, 8. Okay. And this third one for the coupling port for the HDB link. Right. And how we can connect NIM with the audio? See, 1 minute. In audio, this is two screws are there. Remove these two screws from here and remove these two screws from here and connect this NIM together like this for tightening these 4 screws, and the combined unit is like this. Okay, in this NIM there are 4 ports are there. 5, 6, 7, 8. It's mentioned here 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 are the SFP port and up to 10 GB. And port 8 is the electrical port we are using for the local login, right? From site. Okay. For this, from this Octis connector is connecting. This is right. There are 4 types of Octis connector are there. First is for the power. Second is for the electrical. Second is the optical SFP, and fourth is the for the XP. So there are 4 type of octaves are there, and they are marking like this. If this is orange color, then it's for the we are using for the power. Black color we are using for the RJ45, and blue one is for the optical SFP, and this yellow is the XP port. So we can connect like this power directly connected with the power port, electrical or SFP or optical. Okay. In Bharti, we are deploying 2 configuration. One is the 1+0 standalone, and second is the HDB link. HDB link means super dual band, E-band connected with the third party radio. Right? If you have any question, you can ask anytime. Okay. So this is the basic configuration or typical diagram of 1+0 link. In 1+0, there is one UBT. This one is the UBT and one NIM card connecting together. Both side UBT NIM one side, UBT NIM the other side. Okay. We can take power. This one. Okay. And one more thing. NIM, there is no separate power for the NIM. NIM is taking power through UBT only. Okay. So we can give power through this coax cable. Port 8 is for the local login, and port 5 to connect it with the switch or BTS. In one side there is switch router, and the second side means BTS side we can connect port 5 through the to the BTS. We have 3 user ports. Port number 5, port number 6, and port number 7. We can use any of 3, but currently we are using for uniformity, we are using port number 5 for connecting with the switch and for the BTS. If we require another port, then we can connect it. Right? And as I said, numbering is like this. This is the power port 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 are the UBT port, 5, 6, 7 are the NIM port,
8 port is for the local login. Next, typical diagram for the HDB link. In HDB link, UBT name is the same, right? We can power to give UBT name through power port of UBT, port 5 connecting with the switch, port 8 for the local login. This is the same, but there is one extra configuration is there. Third port of UBT coupling port, we have to connect with the third party traditional microwave. Right? Third port connected with the traditional microwave. It can be optical or it can be electrical. We are supporting both, right? And we are using HDB link for if there is any means is prone to rain. So if any feeding in the event, then there will be no outage and the link shift to third party traditional band and it's automatically switched to E band when weather is clear. It means it is in protection. Basically, yes, for feeding, it's in protection. It's for feeding only. Basically, it's not for protection. Means if E band fails, then there should be no hardware protection. It's for only feeding. In case of degraded RSL, if my microwave is In misaligned, case of degraded RSL of E band, then it will shift to third party microwave. How much traffic it will be shipped? It depends on the third party capacity link. in our previous hardware, we can define bandwidth in L1 LA mode for SDV link. So, Mhm. is there any option in this too? Where we are defining this bandwidth to in E band. You are asking this? I am asking that either we are defining bandwidth between E1 to C band, as in previous hardware we are defining around 200 Mbps to 400 Mbps. There is option in E band. We can define the bandwidth of third party microwave C band link. Okay. Okay. Right? Can we move forward? Okay. This is a full outdoor system. Means there is no indoor connectivity there. Only one cable, power cable, and electrical or optical cable coming for the in indoor unit for the connectivity with the BTS or with the switch or router. बॉस थोड़ा सा इसको हिंदी में भी डिक्टेट करते चलिएगा ना, बहुत सारे इंजीनियर्स भी कनेक्टेड हैं जिनको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो एटलीस्ट इसको हिंदी में भी डिक्टेट करते चलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से जहां से कर देते हैं, क्योंकि हार्डवेयर ही कवर किया था हमने। हाँ नहीं, यहीं से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहीं से कर देते हैं, ठीक है। तो अभी करंटली जो हम बाटी में यूज कर रहे हैं, हम दो कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। एक है 1+0 एंड अदर इज द थर्ड HDB लिंक। HDB लिंक मींस E बैंड कनेक्टेड विद द C बैंड लिंक। 1+0 कॉन्फ़िगरेशन में हमारा निम और UBT आपस में कनेक्ट होगा दोनों साइड पे, और फिर उसमें एक पावर केबल जाएगा, पावर केबल के थ्रू पोर्ट 5 जाएगा स्विच या राउटर में वन साइड, और वन साइड जाएगा हमारा BTS में, एंड पोर्ट 8 वी आर यूजिंग फॉर द लोकल लॉगिन। दोनों साइड यही कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। और हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, एक बार मैं लॉगिन करके दिखा देंगे आपको अपने नियम से। इसको कैसे दिखता है अंदर का यूजर इंटरफेस, कैसे हम चेक करते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, अलार्म कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और इसको लॉगिन भी कैसे करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड।
राइट। और हमने डिस्कस किया था अभी कि हमारा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा है HDB लिंक ई बैंड विद द सी बैंड। इसमें हमारे को सेम लास्ट जैसे हमने ये डिस्कस किया यही होता है। इसमें एक एडिशनल पार्ट आ जाता है जो हम ई सी बैंड को कनेक्ट करते हैं। जो हमारा कपलिंग पोर्ट यूबीटी का थर्ड पोर्ट होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं, राइट। इसमें हमारा मींस जो हमारा यूजर जो हमारा यूजेबल पोर्ट होता है वो होता है हमारा पावर पोर्ट जो हम यूबीटी में देते हैं। पोर्ट नंबर 3 ऑफ यूबीटी फॉर द कपलिंग पोर्ट। 5, 6, 7 पोर्ट निम का जो हम यूजर पोर्ट है एंड पोर्ट नंबर 8 फॉर द लोकल लॉगिन। 5, 6, 7 port are our optical SFP port. We can use up to 10 GB. And port number 8 is means RJ45 port है तो we can use up to 1 GB only. Right? This is our the basically product part था हमारा कि हमारा product how many ports are there, how product looks like. Now the next is the operation part, or we can say how to check the RSL or other parts. How we can I log in first one node? Yeah. मैं log in कर Yes. लेने Yes. अभी allow me 2 minutes only बस ये करता हूँ इसको। कि भाई साइड डाउन है। चलिए निकली है।
फोन हो रहा है चार्जिंग बैठ फोन इसे चार्जर दीजिए ये मैं एक राजस्थान का नोड लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले लॉगिन कर लेते हैं 1+0, देन आई विल लॉग इन 1 HTTP लिंक। Okay, this is 1+0 link. Username is initial, and the current password is admin@123. नोट कर देता हूँ इधर। Username initial, password is admin@123। राइट, जो हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड आता है इसका न्यू, उसका डिफॉल्ट पासवर्ड इज admin sorry, right? You have to configure initial admin@123 a caps। राइट, अगर आप साइट पर हो तो आपको लॉगिन कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो हमारा केबल है पोर्ट नंबर 8 पर हर साइट पे लगा हुआ है ऊपर, आपको वो केबल अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। लैपटॉप में IPv6 का जो इसका IP है वो डाल के ये लॉगिन हो जाएगा। राइट, यूजर नेम इनिशियल, पासवर्ड इज admin@123, और अगर आप न्यू UBT आप रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होगा वो होगा admin। राइट, द विंडो विल बी लाइक दिस। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है हमारा को सबसे पहले लाइसेंस इंफॉर्मेशन। ये हमारा लाइसेंस पड़ा हुआ है, ये एज पर द एग्रीड विद द भारती टीम,
जो हमारा कमर्शियल टीम से एग्रीमेंट है, ठीक है। फॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड यू हैव टू क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट। Currently, this is the software W23M or 23A. If you want to upgrade the software, आपके लैपटॉप में वो पैकेज होना चाहिए, देन ब्राउज एंड सेलेक्ट करके आप इसको डाउनलोड और अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, डिफॉल्ट आईपी से लॉगिन नहीं। ओके ओके, ये आपको मैं इसके लिए ओके पहले इसको करते हैं। ये आपका एक आईपी है, ये वाला एक साइट पर 1 है और एक साइट पर, अगर आप फार एंड पे जाएंगे इसके, इन ऑल द लिंक्स, जितने भी हमारे डिप्लॉयड लिंक्स हैं, सब में ये कॉमन आईपी पड़ा हुआ है 1 and 5, ये वाला, एक में 1 एक में 5। तो आपको ये 6 डालकर आप लैपटॉप से लॉगिन कर सकते हैं, राइट। और जो हमारा डिफॉल्ट आता है वो आता है हमारा 10.0.2.2, राइट। आपको लैपटॉप में DHCP रखना है, कोई लैपटॉप नहीं डालना IPv4 के लिए। आप वेब पेज पे ये आईपी डालेंगे अपना, तो आपका ये विंडो लॉगिन हो जाएगा, राइट। और फिर अगर आपको बैकअप डालना है या बैकअप रिस्टोर करना है, देन आप बैकअप रिस्टोर पे जाइए और फिर आप ब्राउज करके आप अपना बैकअप डाल दीजिए, तो फिर आपका लिंक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, इफ यू वांट टू टेक द बैकअप मैनुअली, सो आप इधर इस साइट का नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, KET003 एंड क्रिएट द बैकअप। It will save Hello. in your hello. Yep. One small query. In the previous screen, you have showed that default IP, right? In that 10.0.2.2, that was in disabled, na? Is it enabled or disabled? We can use for the login or? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा डिफॉल्ट ऑडियो आता है, डिफॉल्ट जो आता है निमोर ऑडियो, उसका डिफॉल्ट आईपी ये होता है, ठीक है। बट अभी हमने, जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एज पर प्लान, तो हमारा ये नहीं रहता, IPv4 पे नहीं रहता, हमारा IPv6 पे जाता है। जैसे अभी मैं इस लिंक की बात करूं तो हमारा आईपी प्लान इस लिंक का ये है, और जो हमने जो लोकल लॉगिन के लिए जो आईपी दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है। ये हमारा कॉमन है सारी साइटों पे 1 और 5। Okay. Is it any specific? Is it any specific like 5 for the BTS and 1 for the fiber pop? नहीं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये हमें भारतीय प्लानिंग टीम से मिला था, सेंट्रल टीम से, इसलिए हमने ये यूज किया। So we have to try 1 or 5. हाँ, 1 और 5 आपको इन दोनों आईपी से सारे के सारे भारतीय के नेटवर्क के लिंक लॉगिन हो जाएंगे। ओके, लोकली ओनली। ये शायद ये है इसका 126, राइट। अगर आप लोकल लॉगिन करना है रिमोटली तो आपका हो ही जाएगा फिर ये इस आईपी से। जो एनएमएस से लॉगिन करेंगे वो आपका इस आईपी से होगा, जो भी एज पर प्लान होगा उसका। ओके, ठीक है। नाउ वी वर इन द बैकअप एंड रिस्टोर। सो अगर आपको मैनुअली बैकअप रिस्टोर करना है तो आप इधर डाल दीजिए 003 क्रिएट बैकअप, ये आपके उस पीसी में बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। ये देखिए सेव हो गया। ठीक है। अगर आपको इस बैकअप को रिस्टोर करना है तो आप केवल ब्राउज करिए, इस फाइल को सेलेक्ट करिए और ये आपका रिस्टोर एंड एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, ये हमारा बैकअप रिस्टोर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया। You can see this current software version, and if you want to upgrade it, browse, select the file and download it. After that ये हमारा इधर आपको वर्जन
डिफरेंट दिखने लगेगा। अभी 908 है, जो अपग्रेड वाला आ जाएगा देन एक्टिवेटेड, आप फाइल का ये देन वो एक्टिव बैंक में चला जाएगा और सेकेंडली फिर से आप इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सेकेंडली बैंक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अगर हमने अब लॉगिन कर लिया, आपने अब ये भी कर लिया, ये आपको नया लिंक कॉन्फ़िगर करना है। तो हाउ टू चेक द ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी RX फ्रीक्वेंसी, फॉर दिस वी हैव टू क्लिक ऑन इंटरफेस, रेडियो इंटरफेस, दिस वन। In modem profile setting, we can select our modulation. So currently we are using 64 QAM. So this is 64 QAM, right? And this is the frequency. Current frequency is for this link is 71250, 81250, and this is the power, TX power. -4 is the planned TX power. Okay. After login, setting these parameter for RSL, you have to click on monitoring and maintenance, radio analog measurement, click on this and start it. This is the current RSL 25.1, 24.8, right? And this is our TX power. And one more thing आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको RSL विंडो सपोज करो 5 आवर्स का लगाना है, आप इसमें 5 आवर्स करिए, आवर्स में 5 करिए, स्टार्ट कर दीजिए। आपको RSL वैल्यूएशन देखना है किसी लिंक का, ये देखिए अभी हमने 10:35 से स्टार्ट किया और ये आपका एंड टाइम है इसका 3:36, 15:36। इट मींस अब आपको RSL की विंडो बार बार रिफ्रेश नहीं करनी है, ये इन 5 घंटे में हर 2 सेकंड बाद ऑटो रिफ्रेश करती रहेगी। फिर आप चेक कर सकते हैं आपका उस 5 आवर्स में मिनिमम, मैक्सिमम और करंट RSL कितना है। ठीक है, RSL के बाद अब हम सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, एक्चुअली हाँ, अभी yes, आप yes. जो दिया था इट वाज द आफ्टर 5 आवर्स, मींस अभी से सेलेक्ट किया था उसके बाद जो 5 घंटे का आएगा उसका आएगा। अगर उसका पिछले का कुछ 2-3 घंटे का या पिछले का मतलब लास्ट अच्छा। 24 आवर्स का कितना है वो देखना है। हाँ हाँ, उसके लिए भी आते हैं, इसके लिए हम आगे प्लान किया था, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इन मॉनिटरिंग मेंटेनेंस, रेडियो मेंटेनेंस, PM डाउनलोड, ये हर लिंक में इनेबल है, बट ये इनेबल होना चाहिए फॉर दिस। फॉर PM डाउनलोड यू कैन डाउनलोड इट, दिस इज फॉर द 24 आवर्स ऑफ लास्ट 7 days, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये पूरा दिन इतना मिनिमम इतना गया 24.5, एवरेज 26.1 रहा और मैक्सिमम 29.5 रहा। ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 7 days का आता है। अगर आप 15 मिनट्स इंटरवल पे देखना चाहते हैं तो आपको लास्ट 24 आवर्स का मिलेगा। ये ठीक है, और इसमें और भी काफी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, काफी सारी मीन्स हमारा ACM रिपोर्ट आता है, हमारा किस मॉड्यूलेशन में रहा, सारा 64 पॉइंट में है। हमारा 24 आवर्स में किस में रहा, पीक एंड एवरेज यूटिलाइजेशन, TX पावर एंड एरर रिपोर्ट। इस लिंक में हमारा 4, 5, 6, 7, 8 में कोई एरर नहीं रहा। ओके जी, ओके समझ गए। ओके ना, समझ गए, ओके। और हाँ, और रेडियो डैशबोर्ड में हम अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं इधर। ये हिस्ट्री डेटा कितना दिन तक, कितना लास्ट कितना दिन तक, 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन, ऐसा कुछ? डेज का है, ये देखिए ना, अभी मैंने दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये RSL खोल लेते हैं, देखिए 7 डेज का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप डे वाइज लेना चाहते हैं, इफ यू वांट फॉर द 15 मिनट्स इंटरवल, तो वो आपको 7 डेज का मिलेगा इन नोट्स के अंदर।
ठीक है, एनएमएस में आपका वो ज्यादा है। अगर आप एनएमएस लॉगिन करेंगे, मैं खाली नोट की बात कर रहा हूँ अभी। ओके। ठीक है, दिस वन रेडियो डैशबोर्ड। रेडियो डैशबोर्ड पे आप ये चेक कर सकते हैं, आपका टेम्परेचर, वोल्टेज, वो सब आता है इधर। करंट कितना है आपका, अगर आपको खाली एक ब्रीफ लेना है, पूरा का पूरा आपको समरी, आपको कितना कितना आ रहा है, आपका 15 मिनट में कितना एरर आया, मतलब जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो आपको इधर पूरा का पूरा दिखा देगा, 15 मिनट्स एंड फुल डे। ठीक है, आपका मॉड्यूलेशन 64 को एम में चल रहा है इन लास्ट फ्रॉम लास्ट 8 मिनट्स, ये आपको 24 आवर्स का भी दिखा देगा। और नीचे आपको यूटिलाइजेशन दिखा देगा। आपका पीक थ्रूपुट अभी 15 मिनट्स में 30 बन गया, एंड इन लास्ट 5 आवर्स आपका 321 ही गया हुआ, ये 321 है। तो ये रेडियो का बता रहा है, राइट? लैंड का अलग से है। लैन का, सॉरी, ये तो ये रेडियो वाला यूटिलाइजेशन है, और लैंड वाला पोर्ट में डिस्चार्ज एंड यूटिलाइजेशन। हाँ वो मैं बताता हूँ आपको अभी, वो सारा का सारा आपको स्टैटिक्स में मिल जाएगा। पोर्ट वाला जो आप कह रहे हो, ये रहा। कितना टोटल ट्रांसमिटिंग फ्रेम हुआ, टोटल रिसीविंग फ्रेम, टोटल डिस्कार्ड फ्रेम, ये सारा का सारा आ जाता है। ठीक है, अगर हमें इसको करंट का देखना है रेडियो पे, तो हम इधर भी देख सकते हैं। आवर का यूटिलाइजेशन इज 16%, करंट में 178% आ रहा है, 178 MBPS आ रहा है। एंड यूटिलाइजेशन ये ना अब हमारा यही है, यूटिलाइजेशन परसेंटेज में 16 है अभी, करंट का बता रहा है ये, और जो थ्रूपुट है वो 178 है। अगर अब आप इसको और थोड़ा सा व्यू लेना चाहते हो कि आपका पीक कितना गया 15 मिनट में, तो आप इधर देख सकते हो मॉनिटरिंग मेंटेनेंस, आपको मैंने दिखाया था रेडियो डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका 15 मिनट्स और 24 आवर्स का दिखा देगा इधर। ये 15 मिनट्स में पीक देखो अभी गया था 477। ठीक है, और अगर आपको और व्यू लेना है इसका, तो हमने जो रिपोर्ट्स डाउनलोड किया था इसका, इसमें आप देख सकते हो कितना कितना गया इधर। एक मिनट, अच्छा ये 50 मिनट्स में नीचे आ। ट्रैवल 50 मिनट्स में होगा ना? सॉरी सॉरी, जो इसका हम पीक आवर रखेंगे एवरी 50 मिनट्स है, क्या है? अच्छा रिपोर्ट्स में कह रहे हो या नोड पे कह रहे हो? नोट पे, नोड पे, रिपोर्ट नोड पे। रिपोर्ट दिखाई अच्छा, वहाँ शो करता है, और इसमें हाँ रिपोर्ट में आपका दो रिपोर्ट्स आती हैं बेसिकली। वन इज द 24 आवर्स रिपोर्ट जो आपको 7 डेज का दिखाएगा, ठीक है, और एक आपका 15 मिनट्स का आता है जो आपको लास्ट 24 आवर्स का दिखाएगा। ओके। है ना, और नोड में आपका 15 मिनट्स और लास्ट 24 आवर्स ही दिखाता है। ये अगर ये आपका नोटपैड में है, ये अगर मेरे को एक्सेल में या कहीं पे लेना है तो वो अलाइनमेंट ठीक होगा? क्योंकि बहुत अलाइनमेंट बेसिकली ना ये बेसिकली ये एक्सेल में ही आता है, इस पीसी में एक्सेल नहीं है। जब आप अपने लैपटॉप में लाएंगे इस रिपोर्ट्स को, तो आपको एक्सेल में बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट दिखाएगा ये। लेन पोर्ट का कोई अगर लेन पोर्ट है उसका यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है मिनिमम? इसका मैंने बताया ना आपको, ये इधर देख सकते हैं, ये रहा 1/5 पोर्ट। ये 1/5 पोर्ट मैंने आपको बताया था, या तो ये बीटीएस से कनेक्टेड है या उससे कनेक्टेड है स्विच से। अब नेक्स्ट, कोई लेन मतलब दो, मान लीजिए हमारा पॉप हैंडओवर, ठीक है, चाहे हमारा राजेश आपको कोई म्यूट कर दिया है? हाँ। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ अगर मान लीजिए मेरा ये पॉप हैंडओवर पोर्ट है, ठीक है, ठीक है, तो हमें दो हैंडओवर पोर्ट उसमें क्लॉक करना है, तो उसके लिए लेग बनाना होता है। लेग कैसे, कहाँ बनाए? लेग कैसे बनाएंगे वो भी हम बना सकते हैं। वो इंटरफेस में जाके
आप 2 पोर्ट इनेबल करेंगे, अभी हमारा एक ही पोर्ट इनेबल है, वहां से जाके बन जाएगा। आपको इक्विपमेंट पे जाएंगे, पोर्ट सेटिंग पे जाएंगे, ये हमारा 5 पे ईथरनेट पड़ा हुआ है ना, आप पोर्ट 6 और 7 को इनेबल कर दीजिए ऐसे। ओके 6 और 7 है ना, 6 और 7 आपके इनेबल हो जाएंगे। तो ये 6, 5, 6, 7 सारे का मैक्स कैपेसिटी कितना है, मैक्स कितना तक सपोर्ट करेगा, ये सारा का अलग अलग है या same है? ये ओके, आप डिपेंड करता है आप इलेक्ट्रिकल एसएफपी डाल रहे हैं, ऑप्टिकल डाल रहे हैं, आपको 10G सपोर्ट करता है ये। ओके, अगर ऑप्टिकल डालेंगे तो 10G हाँ हाँ, और ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल में इंटर 1G। 1 कोर्स आप इधर जाके 6, 7 को इनेबल कर देंगे, ये देखिए इधर से इनेबल कर देंगे इन पोर्ट्स को, और फिर आप इसमें लैग बना सकते हैं। सर हर्ष बात कर रहा हूँ यूपी से। सर हाँ, मैं ये बोलिए। कह रहा था कि जो एचडीवी कनेक्टिविटी हम लोग बनाएंगे कि लैन केबल से ही क्रिएट करेंगे कि उसको हम लोग सिपरी केबल से ही यूज करेंगे? ठीक है, उस पर भी आएंगे, अभी अभी मैं बता देता हूँ, वैसे हम दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ओके, जो आप वो बात कर रहे हैं ना, जो हमारा सी बैंड से कनेक्ट होगा ई बैंड के लिए, उसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो हमारा ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल हमारे एंड पे दोनों सपोर्ट करता है, ये डिपेंड करता है आपका सी बैंड में कौन सा पोर्ट है। ओके ठीक है, अगर आपको इन्वेंट्री चेक करना है तो आप इधर एनी इन्वेंट्री पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपको पूरी की पूरी रिमोट इन्वेंट्री, आपका पार्ट नंबर कौन सा है, आपका सीरियल नंबर, निम का सीरियल नंबर, निम का पार्ट नंबर, ओके, एसएफपी कौन सा कनेक्ट है, और आपका यूबीटी का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इन्वेंट्री इधर आ जाएगी। एक ऑप्शन आता है इसमें करंट कॉन्फ़िगरेशन व्यू, आपका क्या क्या कॉन्फ़िगर है पूरे नोड में, क्या क्या पैरामीटर, आपको मैं एक दिखाता हूँ। आपको पूरा व्यू लेना है एक नोड का, आप इसको डाउनलोड करिए, आप इसको खोलिए, यू विल गेट ऑल द व्यू, मतलब आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपने क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्या टीएक्स फ्रीक्वेंसी डाली हुई है, क्या आरएक्स फ्रीक्वेंसी डाली हुई है, क्या आपने क्यूएस डाला हुआ है, आपको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन व्यू दे देगा, करंट कॉन्फ़िगरेशन व्यू बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसमें आपको सीरियल नंबर भी दे देगा पूरा का पूरा इन्वेंट्री। आपको टेक्स्ट चेक करना है फ्रीक्वेंसी क्या डाला हुआ है, आप इसमें करो, आरएक्स फ्रीक्वेंसी 7125, टीएक्स फ्रीक्वेंसी 8125। तो आपको पूरा का पूरा करंट कॉन्फ़िगरेशन व्यू इधर से दे देगा, और आपको इन्वेंट्री पार्ट भी सारा का सारा मिल जाएगा। डीबग इन्फो में जाके आपको एनएमएस चेक करना है, आपको पिंग चेक करना है, एनएमएस आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इधर से चेक कर सकते हो वेदर इट्स कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं। एनएमएस है पिंग 6, इसका एनएमएस का आईपी है, एक मिनट में क्या है, राजस्थान। आपको ये चेक करना है कि इधर से एनएमएस कनेक्टिविटी है या नहीं इस नोड की। ये एनएमएस का आईपी है, ठीक है, पिंग आ रहा है इसका, देखिए मतलब ये नोड कनेक्ट है एनएमएस से हमारा, राइट। अगर आपको एनी रीस्टार्ट देना है तो इधर से दे सकते हैं, इसमें आपकी सर्विस इफेक्टिंग नहीं होती है छोट, और अगर आपको सर्विस इफेक्टिंग वाला कोड देना है तो आप इधर से एनी रिबूट देना पड़ेगा, राइट। क्लियर डीबी मींस ये हमारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ये हम रिमोटली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा विजिबिलिटी चली जाएगी, या आपको लोकल पे अगर कभी उसको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में भेजना है तो आप इधर से क्लियर डीबी रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अलार्म कैसे चेक करते हैं, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1+0 वाले लिंक का। एक नोड अभी हम खोल लेंगे जिसमें हमारा एचडीबी लिंक का होगा,
कौन सर एक और चीज बता देंगे, बीच में बोला, सॉरी फॉर दिस। कुछ भी यस बोल रहा था कि मान लीजिए मेरा कोई एक LAN इंटरफेस कनेक्टेड है, ये तो यहाँ पे कनेक्टेड है, अदर डिवाइस में कौन सा पोर्ट में कनेक्टेड है जो LLDP होता है, वो पता चलेगा क्या आपको? तो वो पोर्ट कहाँ कनेक्टेड है, फॉरेन डिवाइस का कुछ आईडी पोर्ट नंबर? मींस मेरे ई बैंड से हमारे ई बैंड से कहाँ कनेक्टेड है फॉरेन का, आप ये पूछ रहे हैं? नेवर कनेक्टिविटी क्रॉस LLDP नेबर नेवर कौन नहीं, सा है, वो वो तो- नेवर की आईपी। अच्छा मतलब वो कौन सा नेबर की पोर्ट, आईपी मान नहीं लीजिए दिखाएगा इसमें। जी नहीं नेबर की आईपी तो नहीं दिखाएगा इसमें। बेसिकली राउटिंग टेबल, अगर राउटिंग टेबल चेक हो जाए कि कौन कौन से नोड कनेक्टेड है। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए वो जो इथरनेट पोर्ट था मेरा कनेक्टेड है, वो मेरा डिवाइस फाइबर मक्स से कनेक्टेड है। वो फाइबर मक्स का कितना नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है, और उस फाइबर मक्स डिवाइस का और आईडी? नहीं वो पोर्ट से कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है ये तो नहीं दिखाएगा, लेकिन राउटिंग इन्फॉर्मेशन पे आपको उसका आईपी आ जाएगा। ओनली आईपी आएगा? हाँ ओके, मैंने इसलिए दिखाया था, मैं मतलब एरिक्सन और डिवाइस में फॉर एग्जांपल उसमें दिखता है, मतलब अच्छा वो उसमें दिखता डिवाइस है, का तो इसमें कौन अभी सा नहीं पोर्ट है। दिखता है। ओके ठीक है, कोई ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपना अलार्म पे। ये हमारा एक्टिव अलार्म से, एक्टिव अलार्म में देखिए सिर्फ लॉस ऑफ सिग्नल पोर्ट 8 पे आ रहा है, ये आपका बाय डिफॉल्ट अलार्म आएगा, बिकॉज ये हमारा लोकल लॉगिन के लिए हमने इनेबल करके छोड़ा हुआ है और केवल नीचे आई हुई है। अगर किसी को साइट पे लॉगिन करना है तो वहां से कर सकता है। ठीक है, इस पोर्ट 8 पे अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इस पे बाय डिफॉल्ट ये सब नोड्स पे अलार्म आएगा। राइट, और ये हो गया इसका अलार्म लो। ये देखो हमने ऑन करा था ना पोर्ट 6 और 7, रिप्लेसेबल यूनिट मिसिंग आया था। आपको ये चेक करना पड़ेगा अलार्म आ कहाँ पे रहा है। ये देखिए इसने बिल्कुल क्लियर दिखाया, निम पर आया, एसएफपी पोर्ट पर। स्लॉट 1 हमारा निम होता है, स्लॉट 2 हमारा यूबीटी होता है। पोर्ट 6 पे मींस हमारा पोर्ट 6 जो हमने इनेबल किया था उस पे मिसिंग है, मींस एसएफपी मिसिंग है, तो इसने दे दिया रिप्लेसमेंट यूनिट मिसिंग और निम एसएफपी। तो आपको ये रीड करना पड़ेगा आपका अलार्म आ कहाँ रहा है, निम पे आ रहा है, यूबीटी आ रहा है, स्लॉट 1 निम, स्लॉट 2 यूबीटी, और कौन से पोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, आप ये देखिए, ये पढ़िए, आपको पता लगेगा ये सलाम को। एक मिनट, डीमोडुलेटर फेल कहाँ आया है, रेडियो पे आया है। स्लॉट 1, स्लॉट 1 किसका है, रेडियो का होता है। स्लॉट 1 उसका है, निम का। ठीक है, तो ये हमारा रेडियो पे आया हुआ है। डायलॉग फेलियर यूबीटी एम पे आया हुआ है स्लॉट पे। अच्छा तो आपको जब अलार्म देखेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा वो अलार्म आ कहाँ पर रहा है। ठीक है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 निम, स्लॉट 2 यूबीटी, और आपको उसमें क्लियर लिखा हुआ आएगा वो कौन से स्लॉट पे आ रहा है, या किस प्रोडक्ट पर आ रहा है, या किस पोर्ट पर आ रहा है। राइट, आप इससे फिर डायग्नोज कर सकते हैं आपका अपना प्रॉब्लम। अब आपको सर्विस अगर क्रिएट करनी है और न्यू साइट या किसी के लिए भी, आप सर्विस पे क्लिक करिए, क्रिएट करिए, विलेन आईडी कुछ भी ले लेते हैं, 425 1000 लेते हैं, विलेन नेम टेस्ट, आप रेडियो सेलेक्ट करिए, विलेन अभी हमारा 45 ही केवल इनेबल है, और अप्लाई कर दीजिए तो आपकी सर्विस बन जाएगी। ठीक है, एक करंट सर्विस दिखा देता हूँ, ये देखिए, विलेन रेडियो पोर्ट सेलेक्ट करना है आपको, विलेन पोर्ट सेलेक्ट करना है, विलेन नेम दे दीजिए, ये ऑप्शनल है आपको। ठीक है, स्टैटिक्स पे हमने अपना वो देख लिया था, सर्विस बन गई। इंटरफेस पे हमने अपना TX पावर RX पावर देख लिया। अगर हमें किसी पोर्ट की सेटिंग देखनी है तो हम पोर्ट 5 पे जाके देख सकते हैं, जो हमारा करंट है हमने इनेबल किया, ऑटो ने ऑन 1G सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, मॉनिटरिंग मेंटेनेंस पे हमारा करंट अलार्म हो गया, अलार्म लॉग हो गया, इन्वेंट्री, RSL कैसे देखना है, या
ये सब हो जाएगा। और अगर आपको फार एंड का आईपी देखना है, इस नोड से आपका कौन सा नोड है कनेक्ट फार एंड पे, आपको अगर वैसे नहीं पता तो आप इधर एनी नेबर पे जाएंगे तो आपको दिखा देगा ये रहा KET1, ये रहा फार एंड का नोड है KET003 और आपका ये रहा आईपी। आपको लॉगिन करना है, इधर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इधर हो जाता है हमारा लाइसेंस इंफॉर्मेशन। ये लाइसेंस आपका एज पर प्लान हमारा डला हुआ मिलेगा। अगर कोई फॉल्टी होता है तो आपको नया लेना पड़ेगा। फिर सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट डाउनलोड करने के लिए बैकअप रिस्टोर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा आईपी का हो गया, राइट। और SNMP सेटिंग। In case of any new node configuration, first we have to load the license only, right? Exactly, yes. In case of the new node configuration or any faulty node configuration, firstly we need to take the license, huh? Or do you have any trial period? That means we can configure. No, there is no trial period. You have to take the license only. After installing the license only, we need to load the backup, or we need to do the configuration. Right. Okay. And this is the SNMP version. Currently we are using in Bharti, we are using SNMP V3. गौरव जी, अजीत बोल रहा था AP से, वाईजेक से। हाँ, बोलिए। एक्चुअली लास्ट कुछ देर पहले आपने अलार्म लॉक के बारे में बात किया था ना। जैसे हमारा जो ऑडियो है, ऑडियो से जो सिपरी केबल आकर के मक्स में लगा हुआ है, तो आपने दिखाया ना कि रिप्लेसेबल यूनिट मिसिंग ऑन NIM SFP। तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा आइदर SFP फॉल्टी है और पोर्ट फॉल्टी है और या सिपरी केबल फॉल्टी है? वो कुछ मतलब उसमें कुछ है क्या, हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्या फॉल्टी है? ओके, देखिए, अगर आपका SFP फॉल्टी है या प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो आपका रिप्लेसमेंट यूनिट मिसिंग आएगा। ठीक है, अगर आपका SFP सही से लगा है तो ठीक है, तो आपका वो लॉस ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा वो अलार्म। समझे आप मेरी बात को? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मैं बताता हूँ फिर से। अगर आपका SFP सही से लगा हुआ है तो आपका रिप्लेसमेंट यूनिट मिसिंग नहीं आएगा, फिर आपका वो अलार्म LOS में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा लॉस ऑफ सिग्नल ऑन नेम SFP पोर्ट 1/6। ओके, है ना। अगर आपका SFP सही नहीं लगा है या वो है डिटेक्ट ही नहीं हो रही है तो आपका रिप्लेसमेंट यूनिट मिसिंग आएगा। ओके, और हम कैसे टेस्ट करेंगे अगर हमारा रेडियो यूनिट जो लगा हुआ है वो सही है या रेडियो फॉल्टी है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो डिपेंड करता है ना आपके अलार्म कैसे आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप ऑडियो को लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे अलार्म क्या क्या आ रहे हैं। ऑडियो में क्या अलार्म आ रहा है सबसे पहले? अगर आपका रिप्लेसेबल यूनिट मिसिंग आ रहा है तो आपका ऑडियो फॉल्टी आएगा। डिमोडुलेटर फेल आ रहा है या RSL चेक करेंगे कितना कितना आ रहा है। डिमोडुलेटर फेल आ रहा है तो मतलब आपको पावर एंड का एक बार चेक करना पड़ेगा, वहां का पावर ऑफ। ये इस दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे जो फर्स्ट वाला आपने लिखा है ना, क्लियर रिप्लेसेबल यूनिट मिसिंग ऑन NIM SFP slot 1 port 6, okay, ठीक है, the same alarm is coming as a major replaceable unit on row number 4th, replaceable unit missing NIM SFP port 1 slot 1 इन port दोनों में 6। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जब हमने पोर्ट 6 को इनेबल किया था ये मेजर अलार्म जनरेट हुआ था। ठीक है, ये दिखा रहा है, देखो क्लियर आ रहा है लिखा हुआ। इस टाइम हमने क्लियर कर दिया था जब मैंने उसको हटा दिया था इक्विपमेंट पे जाके। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो मेजर में जो अलार्म आ रहा था ना, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेरा सिपरी केबल फॉल्टी है और SFP फॉल्टी है या ऑडियो का पोर्ट फॉल्टी है? वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, देखो, अगर आपको ये अलार्म आ गया सपोज करो, तो आपको प्राइमा फेसी लग रहा है रिप्लेसेबल यूनिट मिसिंग आ रहा है, आपका SFP ही डिटेक्ट नहीं हो रहा है ऊपर।
पर जो ODU का पोर्ट है आपका SFP ही डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब आपके इसमें सबसे पहले आपका सिपरी का इशू नहीं है इसमें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं पता, आपको ये अलार्म आ रहा है, इट मीन्स आपका भी सिपरी का इशू नहीं है, पहले आपको SFP डिटेक्ट करवानी है इसको। मैं वही बता एसएफपी रहा था डिटेक्ट आपको, होने के बाद कौन सा अलार्म आएगा? एसएफपी लॉस सपोज ऑफ डिटेक्ट सिग्नल। होता है। लॉस ऑफ सिग्नल में माइनर अलार्म रहेगा कि मेजर रहेगा? मेजर ही रहेगा वो भी। मेजर ही रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये अलार्म अगर आपका SFP डिटेक्ट हो गया तो आपका ये अलार्म जो रिप्लेसेबल यूनिट मिसिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉस ऑफ सिग्नल से। अच्छा, एसएफपी यदि डिटेक्ट हुआ तो ये अलार्म क्लियर होकर के लॉस ऑफ सिग्नल में चला जाएगा। लॉस हाँ, ऑफ और सिग्नल में जब चला आपका जाएगा। हाँ जब लॉस ऑफ सिग्नल भी आपका पूरा आपस में डिटेक्ट हो जाएगा तो आपका लॉस ऑफ सिग्नल भी क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरा एसएफपी सिपरी केबल खराब है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है 100% ऐसा नहीं हो सकता। किसी कई बार क्या होता है कि डिटेक्ट हो गई SFP आपको लेकिन खराब हो सकती है, लेकिन वो मेजर चांसेस जो होंगे वो आपके सिपरी में होंगे। फिर मीन्स आपकी SFP अगर आपका यही आ रहा है, ये कंफर्म है कि आपका सिपरी अभी पिक्चर में नहीं आई है, आपका अभी सिर्फ SFP ही पिक्चर में है। ओके, है ना? तो ये अलार्म आप देखेंगे तो यू विल डायग्नोज बेटर, मतलब हो जाएगा वो फिर। यहाँ पे ऑडियो चेकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं और रेडियो स्कैनिंग का? रेडियो स्कैनिंग का तो आपको अलार्म देख के ही करना पड़ेगा अभी कि क्या अलार्म आ रहा है, उसके बेस पे ही एक्शन ले सकते हैं। जैसे डायलॉग फेलियर आ रहा है, डायलॉग फेलियर मीन्स UBT और निम ही आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ONM का एक ही केबल रहता है ना जिससे हम लॉगिन कर पाएंगे? ONM का ONM का एक ही केबल रहता है ना जो कि हम मेंटेनेंस के लिए हम लॉगिन केबल यूज करते हैं ना? पोर्ट नंबर 8, पोर्ट नंबर 8, पोर्ट नंबर 1 वही हाँ। वही एक ही रहता है ना? एक ही रहता है, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो टोटल इसमें 4 to 5 पोर्ट्स जो रहता है, 4 पोर्ट्स, इसमें ये चारों पोर्ट क्या 10G सपोर्ट है या 1G सपोर्ट है? इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन? मैं बता देता हूँ, अभी मैंने PPT में बताया था ना आपको, फिर से बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऐसा व्यू आता है, ये पावर हो गया, ये UBT के पोर्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे निम के हो गए। ठीक है, 5 6 7 हम करंट में यूज कर सकते हैं एज अ यूजर पोर्ट, और ये तीनों के तीनों हमारे 10G पोर्ट है। 1G 2.5 10G पोर्ट है, हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं एज अ यूजर पोर्ट। पोर्ट नंबर 5 ऑफ निम, पोर्ट नंबर 6 एंड 7 ऑफ निम। ठीक है, और 8 जो हमारा पोर्ट है, दिस इज पोर्ट लोकल लॉगिन। मुकेश बोल लो, यदि हाँ, सपोज रेडियो फॉल्टी हो गया तो वो लॉगिन होगा क्या लोकली? ओके, एक्चुअली मोस्टली केसेस में तो होता ही है आपका रेडियो लॉगिन। रेडियो लॉगिन तो होगा, बट ऐसा नहीं है 100% तो नहीं कह सकते हैं 100%। अगर उसको निम को पावर ही नहीं, अगर आपका सपोज करो इंटरनली पावर में कुछ हो गया, पावर सप्लाई में कुछ हो गया ऑडियो की, और निम को हम लॉगिन करते हैं निम से और निम पावर ही नहीं ले पा रहा है उससे, तो क्या नहीं होगा? बट आई सी नहीं, अगर रीगर ने वहां ऊपर जाके कंफर्म कर दिया नहीं कि रेडियो में पावर आ रहा है बट लॉगिन नहीं हो रहा है और एनएमएस कनेक्टिविटी नहीं आ रही लोकली, अपना लैंड पोर्ट कनेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या समझूंगा रेडियो फॉल्टी है या फिर लॉगिन केबल खराब है या पोर्ट खराब है? नहीं 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 नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि निम फॉल्टी हो, फिर निम निम में फॉल्टी हो निम, क्योंकि पोर्ट नंबर 8 तो हम निम से ही लॉगिन कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर रिमोटली भी लॉगिन नहीं हो रहा है और लोकली भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो रेडियो ही चेंज करना पड़ेगा, नीम चेंज करना हाँ पड़ेगा। हाँ, राइट। सर, हम कैसे चेक करेंगे कहीं फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम कैसे check? ओके, वो तो आपको म्यूट करके ही चेक करना पड़ेगा इसमें। एक साइड का म्यूट करके फार एंड पे चेक करना पड़ेगा कितना लेवल आ रहा है।
ऑडियो स्कैनिंग का ऑप्शन नहीं रहता क्या इसमें इसमें फ्रीक्वेंसी ओके, स्कैनिंग नहीं कर सकते ना लोकली, फ्रीक्वेंसी मतलब मान स्कैनिंग लीजिए। का, ओके ओके ओके, वो आप लोकली नहीं कर सकते, इसका एक लाइसेंस बेस्ड टूल वो अलग आता है, उसके बेस उससे कर सकते हो आप। उसमें भी आपको ऑडियो म्यूट तो करना ही पड़ता है ना। फ्रीक्वेंसी स्कैन हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्कैन जब हम करते हैं तो हम स्टार्ट किए फ्रीक्वेंसी, तो वो एक्चुअली स्कैन करके हमको बताता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर मेरे को इंटरफेरेंस आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पर हमको ये नहीं है। उस तरह का कुछ ग्राफ वगैरह कुछ आता है क्या इसमें, हाँ हाँ, जैसे वो कि हम आता है, समझ वो पाए? वही 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 मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइसेंस बेस्ड टूल है नोकिया का, उसमें आता है वो। इस इक्विपमेंट में नहीं ये तो आएगा, फिर वो तो लाइसेंस हमारे बेस्ड अलग ऑपरेशनल से। पॉइंट ऑफ व्यू से तब तो सपोर्टिव नहीं है, मतलब वो टूल्स लेंगे, लाइसेंस लेंगे तभी हम कर पाएंगे ना। एग्जैक्टली राइट। इसमें तो आपको सिर्फ म्यूट करके ही चेक कर सकते हैं इसमें तो हम। सर बेस्ट नेटवर्क एबिलिटी के लिए बेस्ट आरएसएल कितना रहना चाहिए इसमें? ओके, इसका रहना चाहिए -24 से माइनस 20, 24। मतलब 24 मिनिमम उस पे रहना चाहिए, मैक्सिमम पे। हाँ और मिनिमम पे हाँ। तो फिर आपका वो थ्रेशोल्ड कितना उस पर डिपेंड करता है। ओके, हाईएस्ट थ्रेशोल्ड कितना रहेगा जो कि फिर मेरा प्ले करेगा या डाउन हो जाएगा या मिस लाइन हो जाएगा? ओके, 64 पे आएगा, 60 है इसका, वही पर चेक करना पड़ेगा मेरे को, 60 के आसपास होना चाहिए इसका, हाँ हाँ हाँ। है ना, वो मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करता है वो। ओके ओके ओके। ठीक है, अब अगर इसका इंटरफेरेंस आ रहा है सर, अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या अलार्म आएगा? अच्छा, रिमोट डिफेक्ट इंडिकेशन आ सकता है आपका, हाँ आरएसएल ज्यादा वेरी कर सकता है। इसमें जो एमएससी वैल्यू है वो बहुत ही डाउन दिख रही है, 35 के अप्रॉक्स दिख रही है, आपने भी एक बार दिखाया था, मैंने देखा था। तो इसका हाँ इधर स्टैंडर्ड आप, एमएससी वैल्यू क्या है विदाउट इंटरफेरेंस? हाँ ये 30 से ऊपर ही रहता है, ये 30-35 ही रहता है, ये ना देखो 35 आ रहा है, स्टैंडर्ड बिल्कुल वैल्यू क्या परफेक्ट। रहेगी जहाँ पे इंटरफेरेंस ना नहीं रहेगा? 30 से कम ही रहना चाहिए मतलब। No. Sorry, Gaurav, to interrupt. हाँ This depends on the RSL. This is in correlation with the RSL. If the RSL increases, then the MSC value will decrease. So having -37 is very good. So if you see the RSL, it is -24 and -25. So which is a very good RSL. So this equivalent is -36 and -35 in the mean square error. अच्छा, इसमें इसमें एक चीज और बताइए, ये नोकिया के इक्विपमेंट जैसे कि हम लूप बैक करते हैं ना कि मेरा ऑडियो सही है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि लूप बैक डाल करके उसका एमएससी वैल्यू और आरएसएल चेक करते हैं। सपोज इसमें क्या उस तरह से कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं एमएससी वैल्यू और आरएसएल मेरा कितना आ रहा है? सपोज मेरा, हम चेक करना चाहते हैं कि मेरा लिंक एक तरफ से डाउन है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ऑडियो मेरा सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या लूप बैक डाल करके हम एमएससी वैल्यू और आरएसएल उसका चेक कर सकते हैं क्या? विनोद भाई, ये आप करेंगे? Yeah, you can check. Yes, the loopback option. It's not radio frequency based. It's a radio loopback is there. So you can check the traffic, but you will not be able to check the RF. So you need a RF loopback. What you are talking is the RF loopback. So Yes, the RF radio loopback. frequency, that RF loopback is not supported. Only the radio loopback is there. रेडियो लूप बैक में हमको पता चलेगा क्या? No, you won't. तो ये तो फिर तो मेरे को डायग्नोसिस करने में भी डिफिकल्ट आएगा कि हमारा रेडियो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि हम जैसे दूसरे इक्विपमेंट में हम चेक कर पाते हैं लूप दे करके कि मेरा एमएससी वैल्यू कितना आ रहा है, आरएसएल कितना आ रहा है। यदि वो मेरे Yeah, रेंज maybe में आ रहा है, इट मीन्स कि हम समझ जाते हैं कि understood. मेरा रेडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। Understood. I think this is being taken as a new feature request. तो क्या ये मेरा आइडेंटिफाई नहीं होगा कि अगर मेरा लिंक डाउन है तो करंट में मेरा नियर एंड पे ऑडियो में प्रॉब्लम है या फॉरेन के ऑडियो में प्रॉब्लम है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
only वही based वही on the क्वेश्चन मैं ROMs. पूछ रहा हूँ, वही सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। करेक्ट, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, बट वो आंसर नहीं मिल रहा ना। हाँ, वो आंसर नहीं है इनके पास। अगर मेरा लिंक डाउन है करंट में, तो यस हमें ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हमारा नियर एंड को ऑडियो में प्रॉब्लम है या फॉर एंड को ऑडियो में प्रॉब्लम है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? Yeah, that's what I'm saying. So there is a radio loop back. With the radio loop back, once you give a loop back, it will reroute the MAC. Okay, so then your traffic will be rerouted. With that, you can identify whether the loop back is on the VLAN, if you are receiving it or not. Then based on that, you can identify which is near end is a problem or a far end is a problem. सपोज दैट मैंने RF लूप बैक ऑन कर लिया, RF then loop back हमें नहीं उसमें है. से क्या ऑप्शन क्या चेक करना है? RSL वैल्यू चेक There is करनी no है, या RF loop अलार्म back. मॉनिटर करना है, या MSC वैल्यू को Sir, देखना है? there is no किस चीज को देखना है? RF loop back is not supported, sir. सर रेडियो लूप बैक में सिर्फ ट्रैफिक चेक कर सकते हो, ऐसा VLAN में Yes. कुछ Yes. पैकेट आ रहे हैं जा रहे हैं, वही किस है ना? ऑप्शन में जाके पैकेट मिलेगा चेक कर मुझे ये? सकते हैं। कहाँ से Right. आइडेंटिफाई होगा? किसी ऑप्शन में जाके बताइए। Sorry. नहीं बट सर सुनील बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। Where can we check the status that after giving the radio loop back, where we need to identify whether it is working or not? Where we need to check that? That's the question from. Okay. See, when you are गौरव सर, giving, जी हाँ जी गौरव सर, हाँ जी हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे इन द केस अगर हमारा रेडियो फॉल्टी हो जाता है, ठीक है, उस केस में क्या सिम्टम्स आएंगे और क्या बिहेवियर करेगी रेडियो हमारी? So वही बोल रहे हैं सर। सबके क्वेश्चन यही है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये हमें ऑडियो जो चेक करना है, हमें जो फॉल्टी, वो हमें अलार्म के बेस पे चेक करना है। तो वही अगर क्या है, ऑडियो कोई फॉल्टी हो गया स्पेसिफिक तो क्या अलार्म अलार्म होगा? जनरेट करेगा, जिससे कि हमें ये पता चले ये ऑडियो मेरा फॉल्टी हो गया है, मुझे रिप्लेस करना है? हाँ, वो हमें अलार्म के थ्रू ही चेक करना पड़ेगा। ये मतलब अलार्म कौन सा इंडिकेट करेगा? अलार्म कौन सा इंडिकेट करेगा, या विनोद भाई? problem RUP. RUP बता. राइट। हाँ, रिप्लेसेबल यूनिट प्रॉब्लम एक अलार्म आएगा, उसके बेस पे ही उसको ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये उस कंडीशन में मान लो, क्या ये सेम अलार्म हमारा बोथ हैंड पे भी शो करेगा, या जिस तरह मेरा इक्विपमेंट फॉल्टी नहीं होगा नहीं, सिर्फ जिस उधर ही साइड लगेगा? पे ये अलार्म जो है आपका रिप्लेसेबल यूनिट प्रॉब्लम, जिस साइड प्रॉब्लम है उसी साइड का आपको रिप्लेस करना है बस। ओके, जिस हैंड पे अगर ये वो RUP अलार्म लगेगा वहीं पे मुझे हार्डवेयर चेंज करना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो अलार्म आने के बाद विजिबिलिटी चला जाएगा ना, विजिबिलिटी रिस्टोर्ड रहेगा, मींस ओके, अलार्म हमें ओके मिलेगा। ठीक है, आपको डिपेंड करता है साइट ए पे आ रहा है, साइट बी पे आ रहा है। अगर साइट ए पे आपका RUP का अलार्म आ रहा है, रिप्लेसेबल यूनिट प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको दिखेगा NMS से। बट अगर बी साइट पे अगर आ रहा है तो वो आपको NMS में नहीं दिखेगा, वो आपको उस लोकली कंडीशन में जाकर तो लिंक देखना ब्रेक हो पड़ेगा। जाएगा ना, तो मुझे फॉर एंड का एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं बिल्कुल दिख पाएगा। राइट। बट मेरा इक्विपमेंट अगर RUP का अलार्म आएगा तो ये मेरा NMS पे विजिबल रहेगा, आप ये कह रहे अगर हैं? आपका ए एंड पे आएगा तो रहेगा। करेक्ट, ए एंड पे आएगा मेरा और NMS पे विजिबल रहेगा, और ये दिखाएगा RUP अलार्म है, और मुझे हार्डवेयर रिप्लेस करना है। आपको हार्डवेयर रिप्लेस करना है, राइट। आपको उसी बेस पे खाली हार्डवेयर अलार्म चेक करना है, और उसके बेस पे आपको ऑडियो चेक करना है या रिप्लेस करना है। गौरव जी, आपने जो दिखाया ना अभी कि रेडियो को हम लूप बैक नहीं दे सकते, उसके लिए क्या कोई फीचर्स है, लाइसेंस है जो कि नोकिया प्रोवाइड करने के बाद वो फीचर्स मतलब इनेबल हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? ओके, अभी करंट में नहीं है, इन फ्यूचर वो आ जाएगा। ओके गौरव सर, ये PPT शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ If बिल्कुल possible? करेंगे, इसके बाद मैं अभी आपको इस पे ही डाल दूंगा, अभी चैट पे सेशन के बाद आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, मतलब चैट पे बॉक्स में डाल देंगे ना? हाँ, मैं चैट बॉक्स पे भी डाल दूंगा इसको। ऐसा कोई अभी PPT आफ्टर डालिएगा जिसमें से कॉन्फ़िगरेशन के सारे स्टेप हों, अलार्म मॉनिटरिंग, VLAN टैगिंग, कॉन्फ़िगरेशन के सारे स्टेप हों। ठीक है, मैं ये वाला डालता हूँ, वरना कुछ होगा तो लॉगिन आप से मुझे लेकर बता देना। लास्ट एंड तक। हाँ, जो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप मुझे बता देना, आई विल इंक्लूड इट। और बैकअप हमें रनिंग ऑडियो का बैकअप लेना या बैकअप डालना, ये एक दो स्टेप एक बार दिखा दीजिए सारे हमको। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ। पहले हम HDP लिंक एक बार सर लॉगिन कर एक लेते हैं। मिनट, हाँ, बोलो। जैसे मान लीजिए मुझे सिपरी की परफॉर्मेंस चेक करनी हो, अगर उस पर कोई एरर तो नहीं है या फिर हमारा सही है लगाने के बाद, तो वो परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, तो आपको स्टैटिक्स पे मैंने बनाया था ना, इस पे जाइए, पोर्ट 5 पे जाइए, इस पे जाइए, आपको इधर दिखेगा आपके एरर तो नहीं आ रहे। ओके, अगर आपको सिपरी में आएगा तो टोटल डिस्कार्ड फ्रेम्स आएंगे ना इधर। ओके।
अगर एरर आ रहा होगा तो क्या वैल्यू होगी इसकी? वो एरर बढ़ता जाएगा ना। अच्छा, बढ़ता ही जाएगा। हाँ ठीक। गौरव सत्यजीत बोल रहा हूँ। एक चीज हाँ जी, हाँ जी। बताइए, ये डिफॉल्ट लॉगिन का कुछ है क्या इसमें? अगर किसी ने आईपी चेंज कर दिया या कुछ हो गया इस तरह से कि बंदे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफॉल्ट लॉगिन के लिए देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, ये 2 आईपी हम हर साइट पे डाल रहे हैं। आपको इन 2 आईपी से जो जो लगे हुए, देखिए दो केस होते हैं। एक तो होता है हमारा फ्रेश ऑडियो। एक्चुअली इनका कंसर्न ये नहीं है, इनका कंसर्न ये है कि जो न्यू ऑडियो मेरे हाथ में आएगा और मैं उस चीज को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आईपी क्या होगी जिससे मैं मेरा बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो जाएगा। ये तो आप बता रहा हूँ, डालोगे उसके बाद ये लॉगिन होना स्टार्ट होगा ना, ये जब आप 2 परमिशन आईपी करके आप आपके, हमको ये ऑफर कर रहे हो। अगर आपका यूज्ड ऑडियो है तो आपको ये 2 आईपी से ही लॉगिन हो जाएगा सारे ऑडियो। ये बाय डिफॉल्ट डल के ही आएगी जब भी कोई मेरा न्यू ऑडियो आएगा, कभी रिप्लेसमेंट के केस बिल्कुल में। बिल्कुल। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश ऑडियो है तो आपको ये आईपी मिलेगा। अगर आपका यूज्ड ऑडियो है तो इन दोनों में से एक आईपी मिलेगा आपको। एक बार ये स्नैप हटाइएगा, नहीं मैं इसका स्नैप ले लेता हूँ। ये हटाओ। इसमें इसमें ऐसा भी है क्या, जैसे ऑडियो हम रिप्लेस करते हैं तो फिर लाइसेंस भी लगेगा इसमें? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप जो हमारा लाइसेंस होता है वो निम्न गौरव होता जी, है। एक चीज बताइएगा, जैसे हाँ ये हाँ दोनों जो आईपी है, ये मैनुअली हम चेंज कर सकते हैं ना ऑडियो में दोनों को? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए दोनों आईपी अगर किसी ने चेंज कर दी और ऑडियो हमें भेज दिया आरएनआर के बाद में हमें वापस, उस केस में हम क्या करेंगे लॉगिन के लिए? ओके, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो भारती में आपको इन 3 आईपी से आपको पूरा नेटवर्क लॉगिन हो जाएगा। नहीं, ये तो हो गया कि इसमें रहता है कॉन्फ़िगरेशन। ये अब मान हाँ लीजिए मैंने एक ऑडियो लिया और उसमें इन दोनों आईपी को चेंज कर दिया और वो ऑडियो किसी दूसरी जगह पे भेज दिया कि आप इसको ऑडियो को यूज कर लो, तो वो बंदा, क्योंकि ये 2 आईपी और मैं भूल भी गया, मैंने बोल मुझे नहीं पता है ऐसा बोल दिया, उस केस में क्या होगा उस ऑडियो के लिए? उस केस में तो हम यूज नहीं कर पाएंगे फिर इसको। क्योंकि अभी जो सेरागोन का जो ई बैंड हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, हमारे पास एक डिफॉल्ट भी रहता है, प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है, प्रोटेक्टेड आईपी रहता है, वो उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता इस टाइप का। तो इसमें कुछ ऑप्शन है ऐसा कि डिफॉल्ट आईपी ऐसा हो कि जो चेंज ही नहीं हो सकता हो? क्योंकि जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो तो चेंज होंगी, हो सकता है मैं नहीं करूं तो कोई और करेगा, लेकिन वो तो चेंज होंगी, तो वो एक ऐसा भी होना चाहिए जो चेंज हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली इसमें ऐसा तो मेरा नहीं है। ये इसी क्वेश्चन में मेरा ये पॉइंट था कि अगर मान लो मैं ऑडियो को फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट आईपी रहेगी, नहीं जाएगी, मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो उस केस में फैक्ट्री मेरा रीसेट के लाइसेंस जो लिए, पहले का पड़ा होगा फैक्ट्री वो रीसेट के लिए हट भी जाएगा आपको या मुझे एटलीस्ट नया लॉगिन, लाइसेंस फिर से लेना पड़ेगा? फैक्ट्री रीसेट के लिए भी आपको एटलीस्ट लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा वही था कि मतलब लॉगिन करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये दोनों आईपी अगर किसी ने ऑडियो में पहले से चेंज की हुई है, दोनों IP4 IP6 दोनों, उस केस में हमें ऐसा क्या ऑप्शन है कि हमें मतलब ये पता चल जाए कि ये दोनों आईपी तो हमें नहीं पता, अब क्या ऑप्शन है इसके आगे? बेसिकली ये वाला जो आईपी है ये हम चेंज नहीं करते हैं। अगर इसने किसने चेंज कर दिया इन केस, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है फिर हमारे पास। एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये तो आप प्रोसेस की बात कर रहे हो ना कि चेंज नहीं करते हैं आप, प्रोसेस से हट के किसी ने बदमाशी से या बाय मिस्टेक इसको बदल दिया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? Let me answer this. There is a feature called SLAAC. Okay, so this is more like DHCP. Okay, Dynamic Host Configuration Protocol. So this is SLAAC is the for IPv6. So once you connect your laptop to the Ethernet port, so this will automatically detect the IP even if it has been changed. Okay, in the same subnet, your laptop will be assigned the IP address. Okay, understand. Now tell me, is there any possibility to reset factory reset radio without login? Because in Aviate there is feature, na? No, here it's not there. Okay. ठीक है। और अगर किसी ने पूछा था अगर फैक्ट्री रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा, वो आपका इस ऑडियो, इस आईपी में चला जाएगा ऑडियो।
एंड वन मोर थिंग, एक बार मुझे वो बताइएगा वो क्या था यूबीटी और जो दूसरा था उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और उसके पोर्ट के फीचर्स, क्योंकि वो यूबीटी में भी 2-3 पोर्ट है और ऊपर में जो है, एक बार उसको इलेबोरेट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ यूबीटी और नीम के फीचर्स। हाँ देखिए ये हमारे निम ऑडियो है, ये 1 2 3 4। ओके ये हमारा निम है 5 6 7 8। ओके, नीम के पोर्ट के बारे में पता चल गया, 8 इज फॉर लॉगिन एंड 5 6 7 इज फॉर ट्रैफिक ना। अब हाँ, मुझे 5 ये 6 7 is for the हाँ हाँ, अभी ये यूबीटी के पोर्ट के बारे में बताइए, ये 1 2 3 किस काम के हैं? अच्छा, ये जो 4 नंबर पोर्ट है ये आपका एक्सपीक पोर्ट है। ओके है ना? और ये जो आपका पोर्ट नंबर 3 है ये आपका कपलिंग पोर्ट है फॉर एचडीबी कनेक्टिविटी। ओके, ठीक है, मींस फॉर एसडीबी वी आर यूजिंग पोर्ट 3 ऑफ यूबीटी ना। राइट राइट। तो आपको इधर अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक लिंक। उसका लॉगिन केबल कौन सा है? 8 नंबर लॉगिन केबल मींस इलेक्ट्रिकली है इसका। खड़ा हो जाके या इलेक्ट्रिकल ऑडियो लॉगिन। सर कोर्स में एक्सप्लेन बल्ला हेलो అడుగు గట్టిగా మాట్లాడు చాలా ఉన్నాను कल से पोर्ट है वहाँ पे ऐप के वाइफ को बिछाना है ना, उसमें ही है ना। गौर पे इस पे ही दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है। ये इस पे के लिए देखिए हमारा ये जो एचडीबी लिंक है हमारा, दिस इज अवर कपलिंग पोर्ट हो जाता है। ये हमारा 2x3 जो होता है हमारा कपलिंग पोर्ट। ठीक है, और इस कपलिंग पोर्ट से हमारा कनेक्टेड हो जाता है सी बैंड लिंक। Compared to other audio. Compared to other audio, is this here there is no coupling port. Right? Or here we create one lag between the C band and the E band. That one C band and E band. So this is for the our HDB link. और जो इधर आपको सर्विस बनाना है वो हमने उधर रेडियो पोर्ट लिया था। Here you have to select the रेडियो leg. गौरव जी, तो फिर एक्सपीक के लिए इसमें 2 ऑडियो लगेंगे? एग्जैक्टली एक्सपीक के लिए 2 ऑडियो लगेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। तो तब वो एक्सपीक लूप केबल हम यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है, दिस इज फॉर द एचडीबी लिंक। अभी इसमें हाँ बोलिए। अभी इसमें जो थर्ड पोर्ट आपने ब्लैंक बताया है वो कोई यूज का नहीं है? एक एचडीबी है, एक एक्सपीक है, इसमें जो सेकंड पोर्ट है। एक मिनट एक्सपीक से कंफ्यूज मत होइए। एक्सपीक हमारा भारतीय में है नहीं अभी। वी आर नॉट यूजिंग एक्सपीक लिंक। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये जो यूबीटी में ये निम छोड़ के नीचे जो 4 पोर्ट है 3 और 4 आप बोल दिए हैं, सेकंड पोर्ट किस लिए है? अच्छा, सेकंड पोर्ट हमारा डिसेबल हो जाता है, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। वी आर यूजिंग निम।
अगर निम हम यूज नहीं करते हैं तो सेकंड पोर्ट यूजर इंटरफेस फॉर BTS कनेक्टिविटी और मीडिया कनेक्टिविटी, स्विच मीडिया कनेक्टिविटी, राइट, ओके। एंड अगर हम निम यूज नहीं करते हैं तो ये पोर्ट नंबर 1 लॉगिन है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। पोर्ट नंबर 2 मीडिया, पोर्ट नंबर 3 HDB और 4 हमारा एक्सपेक्ट के लिए। बिल्कुल। अगर हम अगर निम ऐड कर रहे हैं तो पोर्ट 2 डिसेबल हो जाता है, बाकी 6 और 7 हमारे मीडिया पोर्ट्स हो जाते हैं। 5, 6, 7 5, 6, 7, ओके। डिफॉल्ट ओपन रहेगा, नहीं तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सॉरी ये डिफॉल्ट हो जाएगा, नहीं कॉन्फ़िगर करना है पर 5th पोर्ट कंपलसरी मीडिया केबल। Each option we can connect any one of the 3, 5, 6, 7. We have to enable it. Okay. ये इनबिल्ट लैन पोर्ट्स रहेंगे या SFP ऐड करना पड़ेगा? 5, 6, 7 are the SFP port. अच्छा, ओके। है ना? 8 1 is the for login is the default Ethernet port default Ethernet port not available ना? Port number 8. Port number 8. Thank you. Okay. अरे ये गौरव जी, ये जो 5, 6, 7 जो बता रहे हैं, इसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? सपोज 10G का पोर्ट आपने बोला ना कि 10G तक सपोर्ट करता है, बट हमारा जो BTS है यहाँ पर 1G का सपोर्ट करता है सपोज, तो इसको क्या हम मतलब कि ऐसा प्रोविजन रहता है क्या कि हम उसको चेंज कर सकते हैं 10G को 1G में? हाँ, वो होगा ना, वो तो कर सकते हैं। मतलब ODU में जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाके कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। ऐसे डिफॉल्ट जो है उसका 1G बारे ही में रहता है। लाइसेंस डालना पड़ेगा क्या? सॉरी, उसका बारे में लाइसेंस डालना पड़ेगा, नहीं तो डिफॉल्ट आ जाएगा 10G 1G। नहीं, डिफॉल्ट आ जाएगा पोर्ट्स का। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 10G पर कॉन्फ़िगर रहता है क्या? लाइसेंस डालना पड़ेगा। 1G का जो बोल रहे हो वो तो डिफॉल्ट हो जाएगा। 10G के लिए लाइसेंस यू हैव टू परचेज। अच्छा, ऐसे डिफॉल्ट में 1G ही रहता है बेसिकली आपका। The port capability supports 10G 1G है और 2.5G है। 10G के लिए लाइसेंस है, 1G एंड 2.5G के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। आप जो भी SFP whatever you inserted, whether it is 1G or 10G, the system will automatically detect. If it is a 10G SFP, it needs a license to configure. ये अभी आपने बोला था कि 1 और 8 दोनों लॉगिन पोर्ट्स है, तो दोनों यूज होंगे या निम ऐड होने के बाद 1 डिसेबल हो जाएगा? एग्जैक्टली, अगर हमारा निम नहीं है तो 1 लोकल लॉगिन के लिए होगा। इफ वी आर यूजिंग निम तो 1 डिसेबल हो जाएगा। 8 से ही करना है हमको। अच्छा, ठीक है, राइट। तो अभी निम ऐड होने पे मेरा 1 और 2 डिसेबल होते हैं, निम ऐड नहीं है तो 1 और 2 यूज होते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा निम कभी कुछ इश्यू आ गया तो वो कैसे पता चलेगा, मतलब फॉल्टी हो गया कि नहीं? वो आफ्टर ओनली लोकली लॉगिन कर। हाँ, नहीं, अभी मेरा निम, अरे भाई निम से ही तुम्हारा लॉगिन चलता है। अगर निम फॉल्टी हो गया तुमको लॉगिन कहाँ से होगा? यू आर सेइंग कि अगर हमारा लॉगिन ही नहीं हो रहा है, नहीं होगा। हाँ, अगर निम फॉल्टी हो गया तो लॉगिन भी नहीं होगा। बिल्कुल राइट। अगर हमारा पावर नहीं आ रहा है निम में तो नहीं होगा। तो उसके लिए कोई इंडिकेशन रहेगा, मतलब हम कैसे कंफर्म कर लेंगे कि निम इशू है या लॉगिन पोर्ट भी इशू हो सकता है? उसके लिए कुछ है? विनोद सर। Yeah. Okay. See, first thing, if the NIM goes faulty, so if complete NIM is faulty, your traffic will also be affected since it's carrying the media cable, right? Port 5 is carrying the media cable. I'm coming to that. Okay, let me finish. So once, if say your local login is having issues, okay. So in this case, NMS reachability will be possible.
because port 5 is carrying the in-band management, and it's also carrying the traffic. Your traffic would not be affected. So only the local login would be affected. So in case, let's say port 8 alone goes faulty, only your local login will be affected. So second scenario where your complete NIM is faulty. So in this case, the reachability from NMS will be disconnected and your traffic would be down and local login will also be not possible. So these are the three symptoms, where you declare the NIM is faulty. So there is third scenario where NIM is not able to communicate with the ODU or vice versa. Okay. In this case, reachability will be there. Local login will be possible, but there will be alarm dialog failure between which will be generated on the NIM port. So it indicates that the NIM is not able to communicate with the ODU, which indicates the dialog failure. And so it could be the suspect of either the NIM or the ODU. So these are the three possible scenarios. और just one last question, ये NIM and ODU के बीच में इंटरफेस क्या होगा? There is केबल ही होगा या there is a small passive chip. Okay. And is there any physical LED available to check the status of the physical NIM or the ODU? Not on the radio. One more question. If my in the link one side NIM is got faulty, I can use the 1 and 2 ports in the ODU to restore the link, right? Without NIM? See, currently, or if one side is I'm coming to answer that. I understand your question. So see, by default, the ODU is capable of working as a standalone device. Okay, but as per the Bharti configuration or Bharti ordering, I would say, this comes as a single package. The NIM and the ODU gets mounted in the factory itself, because by manufacturing, these are two individual devices. They are combined together specifically for Bharti project, and this comes as a single entity. So even from the warehouse to all the ordering systems, it comes as a single entity. Okay, so that's the reason this cannot be, whatever you are asking, though technically it is possible, it should not be implemented in the field, because the software is completely different. The software is different for the standalone, as when it is combined with the NIM, the software is different. So for Bharti project, let's say even if only the ODU is faulty or only the NIM is faulty, you are supposed to send both the units. So we have to replace both units in the field. If any one of those goes faulty, we have to replace both, complete set. It's a one single entity. That's what I'm trying to say. Okay. You are saying that even though if my name is fault, I have to change both itself. Correct, exactly. In Bharti's warehouse itself, if you ask for E-band radio, they will send along with the NIM, because there is only single, let's say, part number or like that. Okay. And after radio replacement, license can be retrieved, or a new license has to be installed? There is a separate process for that. You can retrieve those licenses. And somebody, if it is faulty, then do we have to ask anybody for license, or they can use the existing one? See, first thing is like when you are replacing and sending it for repair. Okay, if the unit is repairable, then the same licenses, whatever it has been built on that particular ODU, that will come back with the same licenses. Or in case if there is a replacement being given, so the licenses would be transferred to the new serial number. Okay, गौरव जी, अभी क्या है
मैं साइट पे गया, मेरा ऑडियो फॉल्टी है, मैंने रिप्लेस कर दिया अभी वो रिप्लेस करने के बाद, कॉन्फ़िगर करने के बाद वो रिस्टोर होगा कि तब के तभी उसको लाइसेंस डालना पड़ेगा, वो रिपेयर के जाएगा, वो इट इज अ प्रोसेस। अभी साइट रिस्टोर करने के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा या आपको लाइसेंस लेने पड़ेगा, विनोद सर, राइट? आई थिंक कि हर रेडियो के साथ बाय डिफॉल्ट लाइसेंस आता होगा। बाय डिफॉल्ट कोई फीचर लाइसेंस नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट यू हैव द राइट टू यूज RTU of 50 Mbps. With that you cannot work it out, right? So the question is, when one audio goes faulty, you are bringing another audio to the field. Okay, so this audio, the faulty audio, is being sent for repair, but you have to replace the site and restore the site. So for that there is a portal, Nokia portal, where the license has been delivered for complete project. So in this, there is a process. That's what I told. This has been explained to the MSP, managed service provider, your Ericsson team. So they are doing this. They will be having the access to do this. And what they do is that this serial number, the faulty serial number, जो भी लाइसेंस है उस पे faulty serial number, in that faulty serial number, it will be transferred to the new serial number which you are planning to deploy in the field. So by this, the new license key is generated, and this license key can be uploaded to the system where you are deploying as a replacement. And whatever comes, once it goes to the factory, it will get completely resetted. The repaired faulty unit. इसमें आपका कहने का मतलब है कि जो यूनिट फॉल्टी हुआ है जब रिपेयर होके आएगा तो सेम लाइसेंस वो डाल करके भेजेगा, बट हमको रिप्लेस जो करेंगे हमको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। Am I correct? For the you can transfer. Okay, let me say. How I can transfer, because that faulty unit I am not able to log in. How Exactly. I can transfer this? No need. This doesn't happen through ODU to ODU, correct? This happens through a centralized licensing server, which your team, MSP team, has the access. So they will log into the system. They will say that this particular serial number has gone faulty, and whatever the license it was built in there, that will get transferred to this, and it will generate a new license key and give the system server, licensing server. That process will be done by whom? Basically, whom to MSP, approach? your MSP. Team. Ericsson team. That's right. Okay. They are monitoring the operations, right? Since we have to raise the TT, then they, with serial number. I'm not sure that your internal process. I'm not sure. So for in the project phase, Nokia is handling it. So in the operational phase, they have to handle it. Sorry, Sanjeev Singh, you have raised your hand. You have any query? Yes, sir. What about QS configuration? Little bit. Okay. Gaurav, you can. Sure. Okay. Means your query how to configure in Node QS? Yes. Okay. In services, OS configuration, and currently as per Bharti planning team, as per Bharti configuration, we are using in DipServe. Right. So this is configured as per the we receive data from the Bharti central planning team. We are using 8 queues, out of which 2 are in the SP and rest are in the DW.
Okay, this QS all settings we have to configure manually or any script also, so that one time we can do this. Okay, in project phase we are configuring manually, but we can configure automatically from the server also. And any other question? No, QS no. If anyone have? फेडिंग का कुछ बता सकते हैं क्या? जैसे बारिश हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, वाइजैग लोकेशन इज इन ए पी. Okay, so this location having out of 12 months, we are getting 9 months basically raining. So in this link, can you some your thoughts process on the feeding? How much feeding basically? You have told me the best RSL is up to minus 24 dBm. So in 24 dBm, how much feeding or how what is the threshold? Can you describe on that? Okay, आपका HDB लिंक्स भी है ना? HDB लिंक नहीं चल रहा है मेरा. जो भी अभी नोकिया का हुआ है वो HDB नहीं है अभी. All are in 1+0. So means Gaurav, just discuss about the fading and what will happen in case of the fading. That's all. Okay, इसमें आपका जो होगा RSL will increase. It means फेडिंग में क्या होगा, आपका जो RSL होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. अगर आपका सपोज करो -25 आ रहा है, सो इट विल इंक्रीज द RSL एंड वी आर यूजिंग एडेप्टिव कोडिंग मॉड्यूलेशन. ACM हम यूज कर रहे हैं, तो वो आपको डिग्रेड कर देगा. वो आपका जो मॉड्यूलेशन है वो 32, 16 अप टू 4 QAM. हाँ, अप टू जो उसका RSL है उसके मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंगली. हाँ सर, वो ऑप्शन कहाँ है HTPC वाला? अच्छा, वो ये ACM वाला ऑप्शन हमारा वी आर यूजिंग ACM इन ऑल द लिंक्स. आप देखेंगे तो 64 QAM मैक्सिमम है और 4 QAM तक हमारा जाएगा. ये अगर आपका फेडिंग आ रहा है तो वो इसको अगर इसके थ्रेशोल्ड से ऊपर निकलेगा 64 QAM के, तो इट विल स्विच टू 32, देन 16 एंड देन 4 QAM. इसमें आपका ये मुझे चेक करके रखना पड़ेगा. हाँ, ये आपका बाय डिफॉल्ट चेक ही होगा जो आप अगर चेक करेंगे तो. ओके है ना, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर एंड, बट ये चेक होगा ये चारों. ये जो आप जो लिंक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें AM ऑलरेडी किया हुआ है क्या? हाँ जी, किया हुआ है सारे में. तो ये लिंक किया हुआ है. इस केस में तो मेरा साइट तो फिर फ्लक्चुएट करेगा ही. सपोज मेरा 4 QAM तक जाता है तो मेरा जो हायर बैंडविड्थ का जो है वो तो फ्लक्चुएट करेगा. फिर अगर इन केस जाता है तो करेगा, बट जैसे ही आपका बारिश रुकेगा या फेडिंग खत्म होगा इन केस, तो फिर ऑटोमेटिकली इट विल स्विच टू हायर मॉड्यूलेशन. नहीं, वो तो स्विच कर जाएगा. हम बोल रहे हैं मेरा सर्विस तो इफेक्ट होगा ना इसमें. ओके, आपका जो SP वाला सर्विस है, जो स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी वाला सर्विस है, वो नहीं होगा इम्पैक्ट आपका वॉइस कॉल. No, sorry. Even when there is a modulation upshift and downshift, up to 4 QAM, your services will not be affected. So when there is modulation upshift, downshift, your services will not be affected. It's a seamless shifting only. What is the fade margin for this? Fade margin, we have to check the LB. For this link, I'm not sure. Please mute it. Hello. हाँ जी. Hello.
हाँ सर बोलिए म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें। आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है भाई, बताइए। For come certain some villainly 2G ट्रैफिक के लिए अफेक्टेड है नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा लोकली। नहीं आपको कोई कॉन्फ़िगर नहीं करना, ऑटोमेटिकली होगा ये। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? यस यस। मैं बोला था यूएनआई और आईएनएनआई का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, एक बार जस्ट एक व्यू दिखा देते कहाँ पे। अगर मैं कोई एक इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, मतलब लेन इंटरफेस, तो उसका जो यूएनआई और आईएनएनआई का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Sir, here it will not come now because we are using one queue. हाँ विनोद भाई। Sorry, Gaurav. Yeah, sorry. Yeah. UNI, NNI, it will not come in picture No, because we are, no, we are using it's in not one queue. in .1 cube. Yes. So it will not come here in picture because we are using one queue bridge type. Just SDB configuration, just tell me the SDB configuration, no? Just configure the SDB configuration. Okay, how? Okay, in HDB configuration, first you have to enable the coupling port in port number 3. Okay. Drag and drop, collect and create one lag with radio and the coupling port. Lag. Okay, you have to enable the lag. That's it. That is the means HDB configuration in the E-band. Then C-band, you have to enable the port and connect E-band and C-band. That's it. Do you have any VLAN required for HDB connectivity? Normal VLANs for traffic means which VLAN you are asking? Actually, separate VLANs, any separate we VLANs, have to. I have to create the AVR on HDB services. So used to by default VLAN 200 VLAN. You are asking about 10 VLAN? Yes. Yes, you have to create one 10 VLAN in the HDB, and you have to configure one config file here with 10 VLAN here in system file manager. Okay. Here no need to create any services. In you have to configure config file and the one VLAN in the VLAN number 10 in the C-band link. Same VLAN is pass out to C-band link, है ना? Right. Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. Sir, I have some single question for my side. Actually, how to check HDB services working here properly? How to check? You have to check the alarms. Now, there should here we are getting in alarm in lag. It means it's not working properly. Loss of continuity. Slot to port 3. Okay. Right? So you are getting alarm in the coupling port C and in the lag.
So it means it's not working properly. Alarm should Lag be working. clean. We are connected to physically HDB connectivity, so alarm is clear after VLAN tagging. Yes, yes, Then yes, we yes. have to working on properly lag Properly, solutions now. right. And you can check Okay. the traffic is flowing through the C-band link if traffic is there. If any bandwidth definition required for the event link. No Definition E-band required? link. Yeah. C-band link traffic configuration is required. C-band. Yes. Which bandwidth are required? Okay. Third party means C-band link is working at what bandwidth we have to require to configure here. Okay. Okay, thank you. Okay. Any other question? No. So I'm sharing this PPT to this in this chat only, or you can share your mail ID. Sorry. Can I share in this chat? Can you explain once again ports? हाँ जी, एक और Sir, can you share the PPT? Can you configuration share? Can you share the PPT on chat? I am sharing. Configuration. In 5 minutes, I'm sharing. No issue. Okay. Mail also. हाँ बोलिए. Gaurav, session is completed, right? हाँ, session is completed. मैं ड्रॉप करूं क्या? आपको मैंने एक भेजा, एक बार आप चेक करके ड्रॉप कर जाइए. नो इशू. Okay. Please share them. I am sharing in 5 minutes only. Any other question? No, thank you. Okay, I am sharing is in this chat, or I am sharing my email ID. You can mail me, and then I will send one-to-one if required. Okay. Okay. I am sharing my mail ID. You can mail me for all of mail IDs or whatever, or one-to-one. I will share complete. You can mail me because this chat will not be visible after for me. This will. Okay, you can mail me. I will share this PPT. Right.